everyone, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you're watching Sociology for Beginners. So today I know today is Holi. Wish you all a very happy Holi. I know I am back after a very long time, but I really do wish to come back, but because of some prior engagements I cannot start my videos. I cannot upload my videos on time. Extremely sorry for that. But from now onwards, I will try to be there and upload the videos on time. So this is why I have given Sociology of Beginners, Sociology for Beginners, brought to you a completely new experience of learning, in which what we are going to do, we are trying to actually study in a pattern which is new to you, like for example in online classes, you have in online exams you have this kind of thing where you have multiple choice questions, as you know. So I have tried in even in offline exam also you have this kind of thing. See, most expected questions from online exams, so that's why ऑफलाइन एग्जाम्स में भी यू हैव दिस एमसीक्यूज काइंड ऑफ विच जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता है इसको टाइम पे कंप्लीट करना. सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड ये स्टार्ट करने से पहले यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सोशियोलॉजी. जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है दैट इज हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, जो सब बिल्कुल मेन है. एंड बिकॉज आई गेट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम यूपीएससी एस्पायरेंट्स ऑल्सो, एंड आई नो दिस इज नॉट दैट लेवल, बट उनमें भी बेसिक चीज़ें तो आती ही हैं वैसे एग्जाम्स में, राइट, जेकेपीएससी और यूपीएससी. So I have tried to cover this introducing sociology first. The word sociology is derived from the two different words. अब आपको ही पता है, socio and logos है. Socio and logy, society and logos, or socius and logos. Most of the time we get confused in this, but the answer for this is yes, socius and logos, in which socius means companion or associate, we can say, and logos mean the study of. So the answer is socius and logos. For your convenience, I have given, in the end of this, I have given some screenshots, or you can say some photos, pics of C.N. Shankar Rao, from where I have taken this objective, and from that C.N. Shankar Rao. In sociology, second question, the word socius is a dash word. So what is socius? कैसा word है? अगर आप देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको डेफिनेशन में पूछा जाता है, इज लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच और इटालियन. So the most obvious answer is Latin word. You know that these words are taken from sometimes Latin word, Latin or Greek, right? So this is the answer for your second question. Now I will move to the third question. The third question is the term sociology as a separate discipline to study society scientifically is originated in. कब originate हुआ था? सोशियोलॉजी जब एज ए सेपरेट डिसिप्लिन भी हुआ था. पहले तो ये एज ए सोशल फिजिक्स कहा जाता था, बट एज ए सेपरेट डिसिप्लिन ये कब हुआ? 1939, 1939, 69 और 1830. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन 1839. जब मैं अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने आपको उसमें भी ये चीज़ बताई है. इट्स 1839. ओके. एंड who coined this term? Who coined the term? ये देखो साथ, मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे आते हैं, लाइक एक ही आंसर में से आपको इतने सारे आंसर्स आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे. तो who coined the term sociology? Is it Karl Marx? Is it Durkheim? Is it Comte? Or is it Parson? So क्या आएगा? Answer here is Auguste Comte. Okay, for this. So Auguste Comte, who is also known as the father of the sociology, is a dash philosopher. So what philosopher is he? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, so don't get confused. So is it a French philosopher, American philosopher, German or Russian philosopher? So Auguste Comte is a French philosopher.
because he belongs to France. So Auguste Comte, who is also known as the father of sociology, is a French philosopher. You try to write here. Yeah, it is French. जैसे मैंने आपको जो मैंने नीचे स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, तो you will get to know once we reach there. नेक्स्ट हमारा आ जाता है yes yeah who defines sociology as a science of social phenomena. Who defines science of social phenomena. अब ये थोड़ा सा आपको वो है बिकॉज ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेशन से, उसमें यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब सोशल फिनोमिना अगस्त कॉम्ट ने भी कहा है देखा जाए तो, ठीक है, बट फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स ने भी कहा है, हेनरी गिडिंग्स. सो द आंसर, बिकॉज अगस्त कॉम्ट ने आगे पूरी डेफिनेशन दी है द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज द डेफिनेशन. ये जो मैंने आपको बताया था जो अभी तक हमने किए हैं, लोगोस, सोसाइटी, सोशल्स एंड लोगोस, दिख रहा है आपको इन 1839. जो हमने 2-3 क्वेश्चंस किए यहाँ से 1839 वाला, ठीक है. मैंने आपको कहा कि मैंने आपको साथ साथ में ये इसके दिए हैं. अगस्ट कॉम्ट, ए फ्रेंच मैन. ये देखिए एक्चुअली मेरी बुक की हालत है, मैं ऐसे ही पढ़ती थी, आई मीन पढ़ती हूँ, अब बहुत कम हद का कम हो गया है मेरा पढ़ना. सोशियोलॉजी, सोशियो एंड लोगोस, ये भी दिख रहा है आपको. देखिए एक ही पैरे में से आपको कितने सारे जो है आ जाते हैं, और ये मैंने ऐसे ही नहीं दिया खुद से, ये कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, ठीक है. तो अब इसको हम रखेंगे, just a second, erase and then we will move further. Yeah, so these are the definitions actually. जैसे मैं आपको कह रही थी अगस्ट कॉम्ट जो हैं ये हैं, इन्होंने भी बोला है द फाउंडिंग फादर सोशियोलॉजी डिफाइंस सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, कहा है ना. बट आगे क्या बोला इन्होंने, सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. But अगर हम ये देखें फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स का स्टेटमेंट, तो इन्होंने क्या कहा है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, ठीक है ना. तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर वो कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे, राइट. तो मैंने ज्यादा गंदा कर दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना बाय फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स. सो हमारा आंसर है फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स. सो वी विल मूव टू दिस आंसर ओनली. ओके okay yeah, next question is the book. So answer is D. The book of social order is written by whom. तो सोशल ऑर्डर किसने लिखा है, मार्शल जोन्स, एलेक्स एंकल्स, मॉरिस जीन्सबर्ग या रॉबर्ट बायस्टेड. सो देखिए इसके लिए मैं आपको फिर लेके चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे. जब आपको कहाँ पे आता है, हमारा स्कोप की बात की गई है, यहाँ देखिए नेचर की, सॉरी, द सोशल ऑर्डर. अगर हम शंकर रॉ पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा. द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय रॉबर्ट बायस्टेड इन हिज बुक द सोशल ऑर्डर. तो रॉबर्ट बायस्टेड की बुक है सोशल ऑर्डर, जिसमें उन्होंने ये बताया है, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट बायस्टेड, और उसमें उन्होंने क्या बताया है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है. सो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर या इसका भी हमारा आ जाएगा नंबर 4. सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए सब्जेक्ट, is not a school of thought according to the scope of sociology, which is not a school of thought. आपको पता है according to, अगर आपने स्कोप पढ़ा है अच्छे से, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में 2 स्कूल्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज फॉर्मलिस्टिक स्कूल एक, एंड सेकेंड इज सिंथेटिक स्कूल. सो देयर इज इंडिविजुअलिस्टिक स्कूल नहीं है, बट फॉर्मलिस्टिक को ही हम स्पेशलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं. मैं आपको ये दिखा देती हूँ फॉर यू इंफॉर्मेशन, स्कोप वाले उसमें. या सो द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, स्पेशलिस्ट को ही हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल कंसिडर करते हैं, एंड if I have the next page, and second is the synthetic school. So first is this and second is this. So हमारा आंसर क्या हो जाता है, that means हमारा आंसर हो जाता है this one. ये भी तो है ना, सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक बोलते हैं, तो आंसर क्या है, यहाँ पूछा है नॉट, तो आपको ये ध्यान में रखना है. सो नॉट में क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इज डी, ठीक है.
Right answer is D. Got it? Now we will move to the next question. Next है हमारा the social morphology, social physiology, and general sociology. I hope these are not the new terms for you people. The three main, these are the fields of inquiry given by some sociologists. तो आपको वो कहना है, guess नहीं करना है, बताना है कि क्या है, क्योंकि ये दो चीजें, ये तीनों चीजें किसी और ने भी दी हैं. सो ये आपको इसमें थोड़ा सा श्योरिटी के साथ बताना होगा. तो थीम है, अगस्ट कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स एंड पार्सन है. इसके लिए मैं आपको फिर लेके चलती हूँ हमारे, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो उसको पहले उसमें पेज पे. सो लेट्स मूव टू दिस, या लास्ट पेज. Here it is. The views of Emile Durkheim, one of the stalwarts of the school of thought, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते हैं. दुर्खीम, देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगी. These are as follows: social morphology, social psychology, and this is general sociology. So these three terms are given by whom? Durkheim. So in his school of thought, which is synthetic school. अब मैंने आपको कहा था कि एक और चीज भी है, सोशल मॉर्फोलॉजी किसी और ने भी दिया है. सो देखिए, व्यूज ऑफ मॉरिस जीन्सबर्ग. सो सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल पैथोलॉजी. तो सोशल पैथोलॉजी इसमें अलग है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है. सोशल प्रोसेसेस भी है. तो ये जो तीन हैं ये दी हैं दुर्खीम ने, और ये जो चार हैं हमारे एस्पेक्ट्स, ब्रांचेस, वो दिए हैं मॉरिस जीन्सबर्ग ने. सो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर? लेट्स मूव, लेट्स गो बैक टू द अर्लियर स्लाइड. द आंसर विल बी Emile, Durkheim or Durkheim. Okay, social morphology, social physiology and social general sociology. Next is last हमारा क्वेश्चन है the study of the quantity and quality of population. This is quantity and quality of population comes under which branch of sociology? जैसे अभी हमने पढ़ा, ये different branches हैं. So what do you think? किसमें आता है? सोशल मॉर्फोलॉजी में, सोशल प्रोसेसेस में, सोशल कंट्रोल में, या पैथोलॉजी में? इसके लिए मैं फिर से आपको लेके चलूंगी आपकी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में, लास्ट को गया. यहाँ पे आ जाता है सोशल मॉर्फोलॉजी. अगर आप देखेंगे, डील्स विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन. मैंने काट ही दिया. इट डील्स विद द व्हाट? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड इट इज सोशल मॉर्फोलॉजी. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपके सब ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे मार्क्स आ जाएंगे फुल. एंड इसमें फुल करना स्कोर, दैट मीन्स टेंशन ही नहीं है ना. तो सोशल मॉर्फोलॉजी इज द राइट आंसर. So this is how we finishes up, and these are your to go through. You can do this. Okay, you can go through this. These are very important, and Saint Shankar Roy is a very important book. You all can go through it, and for your further understanding, I will try to provide you some kind of PDF as some are requiring. Okay, but for that I want response from you. I am not getting kind of, मेरे भी है थोड़ा, मेरी तरफ, मेरे एंड से थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा अपडेट नहीं रह पा रही हूँ, अपने चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ टाइम टू टाइम. बट व्हेन आई स्टार्टेड So once I started getting response from you people, I will definitely try to be very active on my YouTube channel. So जाने से पहले मैं फिर से ये कहूँगी, एक तो हम बैक चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे, and I will request you all to please forward this video to all, one and all, to your friends, so that they can also get to know about the channel, and they can take advantage of these out of this. And stay tuned to my channel to get more videos from me, and stay tuned. Don't forget to subscribe my channel Sociology for Beginners, and don't forget to share it as well. So again, once again, wish you all a very happy Holi. Hope आज ही मैं अपलोड कर दूँ होली वाले दिन ही. And मिलते हैं ब्रेक के बाद. Not too much long break. It will be only 1 or 2 days. We'll be back. Bye bye friends.